इजी होगा। So who's gonna start first? So may I start? Yeah, Pratik? sure, you can. Just go ahead, Pratik. My name is Pratik Dute. I am mechanical engineer and I am from Akola. Okay. Hello. Sales experience. I have 6 months of sales experience in Okay. Be Addicted online shopping store. Okay. That is all about. Hello. Next. Hello. Hello. Yeah, hi. This is good morning, all. This is Naina Rao. Basically, I am from Mumbai, but I am staying in Pune right now. So I have more than 12 years of experience into customer service, and I'm BCom graduate. That's it. Thank you. Hello, my name is Pratik Khairkar. I have done my MBA in marketing. I have 3.5 years experience in field sales. I was in Reliance Jio Infocom as a senior executive, the senior sales executive. I am from Amravati. My hometown is Amravati. I am working in Pune. Next. Hello. 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 Yes, my name is Juhi Pawar. I have done 12th diploma in aviation and currently pursuing my graduation. And I'm a fresher and I'm from Pune itself. Hello. Hello. Okay. Hello. Hello. Ma'am, are you getting my voice? यस यस Ma'am. मैं अमृता शाह हूँ। मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ Okay. और मैं एक बाय प्रोफेशन लाइब्रेरियन हूँ, लेकिन पार्ट टाइम में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किया है, उसमें मैं मैनेजर की हूँ और अभी कंटिन्यू मैं आप लोगों के संग ज्वाइन की हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो। अमृता, आपका लास्ट में आपने क्या बोला वो छूट गया है, एक बार रिपीट करेंगे हेलो। क्या? हाँ यस मैम, डेफिनेटली। मैं अमृता साहू हूँ। मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ और मैं बाय प्रोफेशन में लाइब्रेरियन थी। अब मैं अपना प्रोफेशन छोड़ी हूँ और मैं काफी सालों से नेटवर्किंग कर रही हूँ, जिसमें मैं लास्ट 8 ईयर से रनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रही थी, जहाँ पे मैं मैनेजर अभी। ओके. ओके, थैंक यू मैम। Hello. Hello, ma'am. Hello. Yes. Hello, my name is Pragati Vedarkar and I have completed my BCom in Amravati and I'm freshers and my hometown is also Amravati. Okay. Hello. Hello. Ma'am. Yes. Sushant here. I am computer engineering. I am computer engineer student from Pune district, and I am fresher. Okay. ठीक. Hello. 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 Yes. Hello. Yes. बोलिए मंदार. My name is Mandar Rajendra Dokte. I am from Pune. I am into retail sector since 15 years. Okay. Hello. 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 This is Shadab here. Yes. बोलिए. Yeah. I'm Shadab Khan. I completed my BCom from SRT University Nanded. Now I am in Pune, and I have experience of two years in sales. Hi. Hey. Hi, ma'am. This side Shubhi Gupta, and I'm also a marketing executive. I was a marketing executive in a Medwall Solution, and I'm also a medical officer in MD India Health एक Insurance छोटी सी Team. रिक्वेस्ट है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो बस अपना म्यूट करें, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज स्पीकर, क्योंकि बैकग्राउंड से जो आवाजें आ रही है वो डिस्टर्ब कर रही है. Yes. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes. Yes. Hi, ma'am. This is Shubhi Gupta. I live in Pune, and I was a marketing executive in Medwall Solutions, and I live in Viman Nagar, and a dentist by profession. Hello. Thank you. Hello. Yes. Hello, ma'am. Myself is Umashankar Gupta. I live in Pune, and I have 14 years experience in hotel industry, ma'am, as a concierge executive. होटल इंडस्ट्री. ओके. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. Hi, this is Naveen. Hi Naveen.
Basically, I come from Delhi, but currently I'm staying in Pune. I've completed my 12th and I'm pursuing my engineering, and I'm a fresher at this field. Thank you. और कौन बाकी Hello. है? Yes, Chandan Singh. Hey, good morning, ma'am. Good morning. I'm Chandan Singh, and I am currently pursuing my MBA in marketing specialization. And I got a placement from campus in IT International Private Limited, where I was responsible for growing the business, and I was deployed as a business development manager there. And because of COVID-19, I just left the job and looking for new opportunity. Okay, And I'm basically from Nasik. Nasik. Okay. Yes. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Auraj Dubey, and I have 5 year retail sales and telecom sales plus e-commerce sales experience. And my currently profile is relationship manager from rentomojo.com, and I live at Pune, Karad. Okay. अभी किसी का बाकी रह गया है जो Yes, Yes. बोलिए समीर. hi, my name is Samir Salim Dhamneka. I am from Pune, and I have 6 years of BPO experience. In that, I have 2 years of sales experience in a US tech support. Okay. Hello. 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 Yes, Priyanka. Yeah, ma'am. Good morning. My name is Priyanka Gupta. I am staying in Dombivli. I am a graduate. I have 2 years work experience in BPO. BPO. Okay. तो BPO sales and process क्या था? Process में थे या sales में थे? Yes, Pradeep. बोलिए. Hello. Yes, Pradeep. Yes, Pradeep. Yes, Deep profile, but actually I'm from Pune. With diploma in profile in engineering field, and in total I have 3 years of work experience. And my last work experience was in BPO with 1 year. And currently I'm working with 2 ventures. One is this e-commerce, and second is of digital marketing. So I'm quite happy to have you all. Okay. ठीक है. अभी और कोई बाकी है? हर्षित. Hello. Yes, Hello. Harshit. हाँ, Harshit. Yeah, ma'am. बोलिए. I'm Harshit, ma'am, and I am from West Bengal basically, and recently I am staying in Pune. Okay. And I just completed my MBA in marketing. Okay. I have experience of 6 months of experience in TVS Motors, and 6 months of experience in real estate industry as a property advisor. Okay. Hello. Yash. Yeah, myself Aditya Sulay Kavane. हाँ, I'm a mechanical engineer graduate, and I'm a fresher right now. Okay. हाँ. Hello. अभी और कौन बाकी रह गया? जी, मनीष. Hello. Good Yes, morning, ma'am. Manish. Good morning. My name is Manish Wankhede. I'm from Amravati, and I'm pursuing my engineering from last year engineering from D.Y. Patil. I have 6 month internship experience in Slice. It's an app for a finance app. That's it. Okay. ठीक है. और कोई बाकी है अभी? Please ring मतलब म्यूट कर लीजिए. बाकी सब लोग. यश, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया. Yeah, ma'am. My name is Yash Mutwani. I have completed my post graduation from Pune University. I have total of 3 years of sales experience. Okay. I'm looking forward to join Fabina. Okay. Good. Good. Okay. और कोई है जिनका नहीं हो पाया इंट्रोडक्शन अभी तक? हम लोग स्टार्ट करें. चलिए, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आकांक्षा ने आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बता दिया है. मेरा नाम रजनी ठाकुर है. फेबिना ग्रुप की शुरुआत मैंने की थी 98 में, आज से 22 साल पहले. और तब हमारा एक छोटा सा पार्लर हुआ करता था, और उससे मैंने अपना शुरुआत की थी करियर की, जस्ट 5,000 रुपए से. वो भी चूंकि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए गोल्ड लोन से मैंने शुरुआत की थी. और आज की डेट में फेबिना ग्रुप के ग्रुप ऑफ कंपनी है. हमारी एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है फेबिना इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड. शायद आप लोगों को आकांक्षा ने ये सारी चीजें बताई होंगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. तो फेबिना इन्फोटेक जो है वो आईटी सोल्यूशन के ऊपर काम करने वाली एक कंपनी है. उसके बाद में हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है फेबिना ग्रुप फाउंडेशन.
फेबिना ग्रुप फाउंडेशन के पहले इसका नाम हुआ करता था फेबिना महिला विकास केंद्र, जो 2010 में हमने लॉन्च किया था। और 2010 से लेकर अब तक हम लोगों ने कहीं से भी 1 रुपए की भी कोई फंडिंग नहीं ली, 1 रुपए का भी कोई डोनेशन नहीं लिया, और हमने लगभग पहले भी और अभी लगातार कम से कम 1000 से ज्यादा महिलाओं को उनको इंडिपेंडेंट करने में हम लोगों ने हेल्प की है। तो वो हमारा एक सोशल वर्क टाइप बोल सकते हैं। उसके अलावा है फेबिना ग्रुप, ये हमारा फेबिना ग्रुप ऑफ एसोसिएट, जिसमें हमारा कॉस्मेटिक का सप्लाई होता है। और कॉस्मेटिक का सप्लाई जो हो रहा है वो लास्ट 20 ईयर से हो रहा है। पुणे आए हुए मुझे 16 साल पूरे हो चुके हैं। 2004 में मैंने पुणे शिफ्ट किया था। करियर शुरुआत की थी जबलपुर से, एमपी से। कुछ लोग अगर एमपी जानते हो तो जबलपुर में मैंने अपना करियर शुरू किया था 98 में। 98 के बाद में मैं 2004 तक जबलपुर थी और 2004 से पुणे में हूँ लगातार। ठीक है, अभी हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है फेबिना जागृति फाउंडेशन। फेबिना जागृति फाउंडेशन करता क्या है? सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हम लोग आने वाले 3 साल में हमने टारगेट किया है कि हम 5 लाख महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है विमेन एम्पावरमेंट। बाकी सारी चीजें जो है वो है, बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम्स हैं। मैम आपकी हेलो, हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? नहीं। यस मैम। किन किन यस को मैम, नहीं आ क्लियर रही? है, वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है ना? ओके, यस तो मैम। मैडम आपके यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इश्यू होगा, अदरवाइज मेरे यहाँ तो इंटरनेट भी परफेक्ट है। हाँ, यस शुभ्री? शुभ्री? Ma'am, the it is very clear. ओके, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है कि मैंने जैसे बताया कि हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इसको इंडिया लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट किया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम लोग करीबन 5 लाख महिलाओं को हम लोग इंडिपेंडेंट करने वाले हैं। इसके अलावा है फेबिना इवेंट्स। फेबिना इवेंट्स ने पिछले 3 साल में डॉक्टर विवेक मित्रा के 13 इवेंट डायरेक्टली और करीबन 16 से 17 इवेंट इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज किए हैं, मतलब उनके कोलैबोरेशन में किए हैं, और 13 इवेंट जो है वो सेपरेटली फेबिना इवेंट ने किए हैं। ओवरऑल जो है हम लोग पिछले 3 साल से डॉक्टर बिंद्रा के साथ में एसोसिएटेड हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया इंटायर महाराष्ट्र में, इंटायर इंडिया में। और उसके बाद में एक सेकेंड, एक इम्पोर्टेंट कॉल है मुझे, अभी मैं मीटिंग में हूँ, कॉल बैक करती हूँ आपको जी। ओके, हमने लास्ट 3 इयर्स में बहुत काम किया डॉक्टर बिंद्रा के साथ में, और अभी भी हम उनके साथ में एसोसिएटेड हैं, उनके चैनल पार्टनर हैं, और सबसे पुराना और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले चैनल पार्टनर पूरे इंडिया में हम लोग हैं। जितने भी केस स्टडीज अगर आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों की ट्रेनिंग, कल कितने लोग ट्रेनिंग में थे? कल वाली ट्रेनिंग में कुछ लोग थे अपने यहाँ से? आप थे? ओके, गुड। कल आपको गगन ओबेरॉय जी ने शायद कुछ ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन की होंगी, राइट? जो लोग नहीं थे वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में आ जाइएगा, थर्सडे को फिर से होने वाली है। ओके, ओवरऑल मैंने आपको फेबिना का ब्रीफिंग क्यों दिया? आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसने शुरू कहाँ से किया था और कहाँ तक वो पहुंचे हैं। ये तो अभी हमारी, फिर भी मैं कहूंगी ये हमारी शुरुआत है, क्योंकि जितना बड़ा मिशन हो वहां पर शुरुआत करते समय वो ध्यान में रखना चाहिए कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो है हम लोगों के इस मिशन में अकेले नहीं पॉसिबल है। यहाँ तक की जर्नी मैंने, फिर चित्रेश सर मेरे साथ में आए, हम लोगों ने तय कर ली, बट इसके बाद वाली जो जर्नी है उसमें सब लोगों का, बहुत बड़ी टीम का एक सपोर्ट चाहिए, तभी हम लोग इतना बड़ा जो टारगेट हमने लिया है उसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को, सबको उसी मिशन का एक हिस्सा बनाते हुए आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जो भी फेबिना के साथ में एसोसिएट होना चाहेगा, करना चाहेगा हमारे साथ में लॉन्ग टाइम में काम, हम लोग प्लान सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, घर वालों के लिए भी कर रहे हैं। फेबिना के साथ में जितने लोग भी एसोसिएटेड हैं, हम लोगों के यहाँ प्लान है अभी ई शॉप का, हम लोग आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं अपनी टीम मेंबर्स के लिए भी, और बाहर से जो हम लोग अपने पार्टनर्स अपॉइंट कर रहे हैं उनके लिए भी, राइट? किसी का कुछ बाकी? आप स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है। ओवरऑल जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अभी मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो टीम मेरे साथ में काम करने जा रही है उसके लिए सेल्स का मतलब क्या है, वो सेल्स के फील्ड में आ क्यों रहे हैं। ठीक है, जब तक आप लोगों का वाई क्लियर नहीं होगा, आज हम लोग ट्रेनिंग आज शुरू नहीं कर रहे हैं। आज मुझे चाहिए कि आप सब लोगों का सेल्स फील्ड में आने के लिए वो जो वाई है वो क्या है। अट्रैक्शन है, ठीक,
टेम्पटेशन है या एक क्रश है, या आपको लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है? प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनके पास में भी पीछे से आवाजें आ रही है वो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज सबको डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आप सबके लिए सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स फील्ड में आप क्यों आना चाहते हैं? ठीक है, किसी ने एमबीए किया है मार्केटिंग में इसलिए वो आना चाहता है, या उसका इंटरेस्ट है इसलिए आना चाहता है। ठीक है, कुछ जैसे सर ने बताया कि होटल इंडस्ट्री से है, होटल इंडस्ट्री के बाद में होटल इंडस्ट्री पुल ब्रांड होता है, वहां से अगर आप पुश ब्रांड में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सेल्स जो है वो पुश मार्केटिंग होता है, पुश बिजनेस बोल सकते हैं हम उसको, वो होता है। तो मुझे आप लोगों का वाय बहुत जरूरी है जानना। देखिए, टाइमिंग आए हैं कि अभी कोरोना के समय पे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं जो भी है आपकी रियलिटी वो जानना चाहती हूँ, ताकि मेरे लिए इजी हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है 22 सालों का, जिसमें से कोर एक्सपीरियंस जिसको मैं बोलूंगी सेल्स एंड मार्केटिंग में, वो है 20 साल का। और मैंने चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत काम किया है, इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग मल्टीपल काम खुद करते हैं। हमने कॉलिंग भी की है, हमने टीम हैंडलिंग भी की है, हमने प्रोसेस भी मैनेज किया है, हमने चैलेंजेस भी हमने हैंडल किए हैं, कस्टमर भी हमने हैंडल किए हैं, कस्टमर ऑब्जेक्शंस भी हमने हैंडल किए हैं, कस्टमर सर्विस भी दी है, तो ओवरऑल फाइनेंस भी मेंटेन किया है, सारी चीजें की हैं, ट्रेनिंग भी की है। सो एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सब कुछ आता है, बट इतना जरूर कहूंगी कि बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ आता है। 20 सालों की जो मेहनत है, जो 20 सालों की जो लर्निंग है, वो लर्निंग आप लोगों के साथ में शेयर करने जाने वाली हूँ अगले 3-4 दिन में, जो भी हमारे पास में ट्रेनिंग का टाइम है। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप लोग किस माइंडसेट के साथ में हमारे साथ में ज्वाइन करने वाले हैं। सो फटाफट बता पाएंगे क्या? एक तो आज के लिए एक ये सवाल जो आपको तुरंत अभी बताना है कि आपका वाय क्या है, सेल्स फील्ड में आने के लिए आपका वाय क्या है, पहला। और दूसरी जो चीज है वो आपके गोल्स क्या हैं और आपके माइलस्टोन क्या है। ठीक है, गोल है एग्जांपल के तौर पे कि मुझे गोवा जाना है, मुझे कल गोवा पहुंचना है। ठीक है, माइलस्टोन क्या है कि मुझे गोवा जाने के पहले सबसे पहले तो मुझे पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप पे जाने के बाद में गाड़ी फ्यूल भरवानी पड़ेगी, देन उसके बाद में आगे चलूंगा तो कुछ दूरी के बाद में मुझे माइलस्टोन दिखाई देगा कि 50 किलोमीटर मैंने तय कर लिया है। तो वो जो गोवा तक पहुंचने वाली जो जर्नी है, उसके बीच में जो माइलस्टोन है वो आपके क्या है और आपका गोल सेट क्या है। कुछ लोग होंगे जिनको गोल सेट पता होगा अपनी लाइफ का, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप लोग जिनको पता है वो गोल बता सकेंगे, वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैसेज में डाल दीजिएगा। और जिनको नहीं पता है वो क्लियरली बोल दीजिए कि अभी मेरा गोल तो सेट नहीं है, बट माइलस्टोन है मेरे पास में। अगले 3 महीने में मुझे क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, और अगले 5 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, इनको हम माइलस्टोन बोलेंगे। गोल होता है एक ड्रीम, एक जिसको अचीव किए बिना मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहता, वो है गोल। ठीक, माइलस्टोन है जो हमारे साथ में हमें रोज के उसमें करना है। तो आप सब लोग एक्सपीरियंस है, सबके पास में अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को सेल्स नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को सेल्स के बेसिक सिखाने वाली हूँ, बेसिक फंडामेंटल सिखाने वाली हूँ। मैंने अगर अपनी जर्नी एक 5,000 रुपए के लोन से शुरू करके आज इस वेंचर को 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तक लाया है, तो बहुत मेहनत की है। और सबसे ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ में एथिकली काम किया है। कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि फेबिना ने यहाँ पर हमको 1 रुपए का भी चीट किया। हम लोग अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी में बिलीव करते हैं। मेरे पार्टनर कहते हैं कि रजी मैम का तो बस चले तो वो 1 रुपए के बदले में 7 चवन्नी दें, मतलब 1.25 वापस करें। और सच्चाई ये है कि हम करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, शायद 1.5 रुपए कर भी पाते हैं। ठीक है, सो वो हमारा बेसिक फंडामेंटल है। हम लोग अनएथिकल काम नहीं करते हैं, हमारी टीम को भी वही प्रैक्टिस कराते हैं कि आप एथिकल काम करो और बहुत आगे जाओ। ठीक, सो उसके लिए जो हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, कुछ टेक्निक पे बात करेंगे, कुछ स्किल्स पे बात करेंगे। स्किल्स और बाकी सारी चीजें जो है कस्टमर हैंडलिंग और बाकी सारी चीजें फील्ड का काम है। कुछ लोगों के पास में एक्सपीरियंस होंगे, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस लाना है। सो मुझे आप सबका वाय जानना है, और वो भी फटाफट। ठीक, टाइम खर्च नहीं करते हुए, क्योंकि जब तक वाय क्लियर नहीं है तब तक मेरे लिए मैं कुछ भी डालूं। आप लोगों ने सबने घड़ा देखा है?
घड़ा देखा है, मटका? Yes, yes. ठीक है, हिंदी आती है ना सबको? ठीक है, हाँ। मेरी चूंकि मैं MP वाली हूँ इसलिए मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, तो आप सब लोगों ने घड़ा देखा है? देखा Yes, है ना? ma'am. ठीक है, तो घड़े को अगर उल्टा कर दिया जाए, ठीक, उसके बाद में उसमें दूध डाला जाए, अंदर जाएगा? नहीं, चलो दूध नहीं जाएगा, घी डालते हैं, घी शायद कुछ चला भी जाए, नहीं जाएगा। शक्कर डालते हैं, वो शायद चली जाए। ठीक है, हम कुछ भी डालेंगे, अमृत भी डालेंगे ना, तो भी वो बाहर चला जाएगा। तो वो घड़े को हमें सीधा करना पड़ेगा, और जब तक वो घड़ा सीधा नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाय है ना, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं होगा। जो कि अभी मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी में सर्च कर रहा हूँ, आकांक्षा मैडम का फोन आ गया, मैंने रिज्यूम पोस्ट किया हुआ था, सो मैंने सोचा ठीक है टाइमिंग में कर लेती हूँ। बट मैं इतना दावा कर सकती हूँ कि फेबिना में आप लोगों के जो भी सपने हैं वो पूरे होने की ताकत है फेबिना के साथ में। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो अनलिमिटेड नॉलेज मिलेगा वो भी यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा, बट उसके लिए आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। आप क्यों सेल्स फील्ड में आ रहे हो, आप क्यों हमारे साथ में जुड़ रहे हो, जब तक वो वाई क्लियर नहीं है तब तक हम लोग कुछ भी कितनी भी मेहनत करें, आप करो, मैं करूं, हमारी पूरी टीम करे, ठीक है, किसी की भी मेहनत कोई मतलब की नहीं रह जाएगी जब तक वाई नहीं क्लियर है। सो हमें काम करना है, आज का जो काम है, आज की जो ट्रेनिंग है, उस घड़े को सीधे करने का काम करना है, तभी आगे की ट्रेनिंग काम आएगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों का इस फील्ड में और फेबिना के साथ में एसोसिएट होने के पीछे वाई क्या था। जो होना ईमानदारी से बोल दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरीके का। अच्छा, एक और चीज है, आप लोग ये ट्रेनिंग के बाद में अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे आपके साथ में काम नहीं करना है, आप लोग फ्री हैं वापस जाने के लिए भी। बट इतना दावा है कि इन 5 दिनों में आपको जो चीजें सीखने मिलेंगी वो कहीं ना कहीं हर जगह पे काम आने वाली है। ठीक है, सो प्लीज अनम्यूट करके एक एक जन बताना शुरू कीजिए कि आपका वो वाई क्या है इस मैं सेल्स सीखना फील्ड में आने के लिए और फेबिना के साथ एसोसिएट होने के लिए। यस यस मैम, सेल्स मीन्स कन्वर्टिंग लीड्स इनटू रेवेन्यू, और ये ऐसा प्रोफाइल है जिसमें टारगेट रहता है, और टारगेट की वजह से अपन काम करने के लिए ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं। Okay. And I like to achieve target. That's why I came in this field Okay. and work with Febina Group. वेरी गुड, गुड। सो टारगेट आपको मोटिवेट करता है, प्रेशर आपको चार्ज करता है। ओके, गुड। प्रतीक, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रेशर आने पे दब जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर आने पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड मैम, प्रेशर आने से अच्छा काम होता है। वेरी गुड, मेरा बोलना है। चलिए, ठीक है, और कोई बताएगा? या बताना चाहूंगा सेल्स मेरे लिए क्या है। हाँ, लाइक अगर सेल्स है तो ही मार्केट है, तो ही बिजनेस, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि सेल्स के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी मार्केट या कोई भी सर्विस अगर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो इनकम्प्लीट है। सेल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है अपने बिजनेस में, या कोई भी अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में तो मैं खुद एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ। मार्केट में मैं 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो सेल्स बहुत मैटर करता है टू एक्सचेंज मनी। बहुत क्लियर आवाज में मतलब कहना चाहूंगा कि अगर अफकोर्स सब तो पैसे के लिए काम करते हैं, तो अगर सेल्स होगा तो ही पैसा होगा। और इन एक्सचेंज जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सामने कस्टमर को हम लोग मिल रहे हैं, उसी के एक्सचेंज में हम पैसा ले रहे हैं। तो सेल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बहुत थोड़ा सा मेरे पास एक्सपीरियंस है सेल्स का, जिसमें मैंने बहुत अच्छा किया था। बट ट्राई करूंगा थोड़ा हार्डकोर सेल्स करने का और मेरे जो भी स्किल्स है उसे अपग्रो करने का। तो दैट्स द रीजन आई एम। चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ में मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ जिसमें टाइम खर्च ना हो। आपके हिसाब से प्रदीप, सेल्स को अगर 1 वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो वर्ड क्या होगा? ये सवाल सबके लिए है। हाँ, ग्रोथ। क्या? ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। ओके, चैलेंजिंग। ओके, चलिए अभी एक एक कन्वर्टिंग लीड्स इनटू रेवेन्यू। हाँ प्रदीप, आपका कन्वर्टिंग लीड्स इनटू रेवेन्यू। ओके, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेल्स का मतलब क्या है, मगर मैं चाहती हूँ आप लोगों के दिमाग में क्या है वो भी जरूर निकले। ठीक है, और कोई बताएगा? बताना सबको है। हेलो मैम। एक स्किल है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड में क्यों आए
उसके बाद में सेल्स का मीनिंग क्या है वो बताना, वो दोनों सवाल एक साथ बताने हैं। यस चंदन ओके बताइए। मैम। सी मैम, बेसिकली मैं अपने आप को एज अ बिजनेस हेड देखना चाहता हूँ फ्यू ईयर। ओके। एंड फॉर अ बिजनेस हेड उसको अराउंड उसको मालूम रहना चाहिए सेल्स प्रोसेस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, HR का वर्क कैसे होता है, और एडमिन का सबका नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। तो मैं इसलिए आया हूँ सेल्स प्रोफाइल में कि मुझे सेल्स प्रोफाइल का पता चले, मुझे वो सेल्स में से वो स्किल्स मेरे को चाहिए, मुझे मेरे अंदर जो डेवलप करना है, मुझे वो जो जो कि मुझे सेलिंग करने से आएगा। ओके, कंप्लीट और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप। गुड। यस मैम, ठीक है। बेसिकली मैम सेल्स एंड मार्केटिंग के बिना कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस तो रन हो नहीं सकता है। वेरी गुड। तो इसलिए मैं अपना स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ, इन फ्यूचर मेरा ग्रोथ इसमें अच्छा होगा। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन हेलो बताना मैम। चाहेगा? अच्छा, और आपके लिए चंदन सेल्स का वन वर्ड में मीनिंग क्या है? मैम सेल्स के स्किल्स। स्किल्स, ओके ठीक है। और कोई? Hello. हाँ Yes, हाँ चलिए। ma'am. Sales is a rewarding and challenging career. You know, competitive career. So it makes you give your sorry. It motivates you to give your 100% whether you're working or what. The more you sell, the more you get the leads, and yes, I mean, and as I got the opportunity with Febina Group, so I should have. I should have the collect all the information about the Femina upcoming projects, and I want to give my 100% in it. That's वेरी it. गुड। ओके Hello. ठीक है। Hello. यस हाँ Yeah, ma'am, Naina here. हाँ नैना बोलिए। Actually, I have more than 12 years experience into sales. ओके बैक ऑफिस प्लस सेल्स, ओके सेलिंग ऑल्सो। सो ओके जितना मुझे सेटिस्फेक्शन सेल्स में मिला है उतना मुझे आई हैव नॉट गॉट इन एनी काइंड ऑफ जॉब दैट इज मे बी ओके इट इज बैक ऑफिस और एडमिन काइंड ऑफ। ओके एंड जितना ग्रोथ सेल्स में होगा उतना ग्रोथ कोई भी इसमें नहीं होता है तुरंत इन शॉर्ट। ओके And second thing, I want to be independent and I don't want to be dependent on anyone. Maybe it is my husband or children. So that is ओके the thing I am into here. ओके। आप कहाँ पुणे रहती हैं? हाँ, मैं पुणे से रहती हूँ, बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। आई एम ओके साउथ इंडियन। ओके गुड। बट हिंदी अच्छी है आपकी। गुड। थैंक यू। ठीक है। सो और कोई नेक्स्ट? यस स्वप्निल बताइए। तो मेरे लिए सेल्स ऐसा है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है यार तो हाँ अपने आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ हाँ तो इसके लिए सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ओके मुझे बचपन से किसी की गुलामी करना अच्छा नहीं लगता। ओके तो कि वहाँ पे जो ये कर मैंने कंपनी में पिछले लगभग से 10वीं क्लास तक सबसे अलग अलग कंपनी में काम किया है। मेरा एक्सपीरियंस है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, खुशी लगती है, तो अच्छा लगता है। मैंने स्टेशन पे वड़ा पाव बेचे है, मैंने समोसा बेचा है, तो मुझे वो पता है कि सामने वाले से इंटरेक्ट कैसे करना है। अब जैसे आपने ओके कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, मैंने भी 1 साल तक काम किया है। स्वप्निल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में ना आपका मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा बिल्कुल भी। ठीक है? और कोई बताएगा? हेलो। हाँ जी। यस अमृता यस मैम, मैं बताना चाहती हूँ जी। कि मैं तो एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करती थी ओके और मैं लाइब्रेरियन थी, मैं चीफ लाइब्रेरियन थी, तो मैं एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करती थी। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि हर कुछ मार्केट में सिर्फ बिकता ही है, चाहे वो एजुकेशन हो या आप कंसेप्ट सेलिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ओके तो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, तो तो मैंने अच्छे से देखा था, उसमें बहुत अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग देखा, MLM देखा, तो फर्स्ट मेरी कंपनी थी ऑरिजिनल, दूसरी थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, दोनों में मैंने अचीवमेंट अचीव किया। लेकिन मैं आपके संग इसलिए जुड़ी हूँ, अचीवमेंट तो मैंने ले ली, डायरेक्ट सेलिंग भी मैं कर सकती हूँ, कर रही हूँ। मुझे टीम हैंडलिंग करना, मुझे बिलिंग करना,
करना, लोगों को किस तरह से हमको डील करना है, ये सारी चीजें मुझे अच्छे से आ रही है। लेकिन सक्सेस पाना और सक्सेस को सस्टेन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सक्सेस को जो सस्टेन करने में वहां पे मैंने जो फेस किया, उसको मैं चाहती हूँ कि मैं आपके संग जुड़ के उस चीज को सीख करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ और लोगों के सामने एक ऐसा फेस वैल्यू क्रिएट करूँ कि वो मैं अपने आप को एक काम कर। अमृता, और आप सब लोगों के लिए मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था सन 2000 में, और सन 2000 के बाद में मैंने 2001 में काफी बढ़िया अचीवमेंट लिए। बट उसके बाद में मैंने जब कंपनी 2002 में जब चेंज की, तो मुझे 34 डेज में मैंने करीबन 20-22 लाख रुपए कमाए थे और लाइफ की पहली कार गिफ्ट में ली थी सन 2002। 34 डेज का मेरा अचीवमेंट था, 4 लैपटॉप, 4 कंप्यूटर, 4 मोबाइल और एक फुल्ली पेड इंडिका कार। ये मैंने लिया था, सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट मेरा सन 2002 में था। आई थिंक मेरी एज उस समय पे 25 थी। उस समय मैं एमपी की फर्स्ट कार अचीवर लेडी हूँ, ठीक है। देन उस समय पे, चूंकि उस समय पे आज से 20 साल पहले उतना ज्यादा माहौल नहीं था, लड़कियां उतना, लेडीज उतना वर्किंग नहीं थी, और उस समय पे मैंने लिया। देन उसके बाद में मैं जब पूना सेटल हुई तो मैं हिंदुस्तान लीवर के साथ में मैंने काम किया। हिंदुस्तान लीवर के वेस्ट डिवीजन में मैं मतलब एक, मुझे ऑफिस बॉय से लेकर कंट्री हेड तक मुझे जानते थे। देन उसके बाद में मैंने काफी काम किया, और काफी काम करने के बाद में एक मलेशियन कंपनी में मैं इंडिया टॉपर रह चुकी हूँ। सो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने महीने का 20, 25, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए भी कमाया है। उसके साथ साथ में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2014 में हम लोगों ने झारखंड में काम किया था, रांची में। और रांची में जो आपके यहाँ प्रभात खबर न्यूज़पेपर है, उसके जो फ्रंट पेज पे मुझे कम से कम 4 से 5 बार कवर किया गया था, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे 1 से 1.5 महीने के अंदर 100% कोल्ड कॉल से कम 500 से 600 लेडीज को एंगेज किया था, ग्रूम किया था, एक्टिविटीज की थी। उसमें कॉम्बिनेशन था मेरा मतलब एनजीओ का प्लस मोदी केयर का, और हमने बहुत बड़ा काम किया था। 2014 अप्रैल टू जुलाई मैं रांची थी, और वहां काफी बड़ा मेरा नेटवर्क है। ओके, तो जस्ट आपकी बात के साथ में मैंने कहा आपको बता दूं कि मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस रह चुका है। मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। 2010 से मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है विमेन एम्पावरमेंट, जिसके ऊपर काम करने की शुरुआत करते करते थोड़ा सा स्लो चल रहा था, बट अब हम फुल फ्लैश में आ चुके हैं, और अब हमने ठान लिया है कि हम लोग बहुत बड़ा कुछ काम करें, ठीक है। सो गुड। बिल्कुल। अमृता, बिल्कुल आपने फेबिना के साथ में एसोसिएट होने का कुछ कारण बताया था, मैं सुन नहीं पाई थी, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, मुझे फेबिना मेरे भाई ने बताया, अभिषेक कुमार साव, जो आपके साथ काम कर रहा है, वो फेबिना में काम कर रहा है आपके साथ। तो उसने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फील्ड है जहाँ पे मैं भी, क्योंकि मैं भी मतलब आज 7-8 सालों से कुछ अपने स्तर पे जितनी लड़की, मैं एडुकेशन फील्ड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं ये सोचती थी कि एडुकेशन अगर लड़कियों के पास होगा तो वो लड़कियां अपने आप को ग्रूमिंग कर सकेंगी। तो मैं उसमें बहुत सारे मतलब 100-200 लड़कियों के साथ काम करके उनको ग्रूमिंग कर चुकी हूँ, जो आज वेल मतलब स्टेब्लिश है, अपना इनकम ऑफ सोर्स जनरेट कर रही हैं। तो ये मेरे भाई ने मुझे बताया कि दीदी, तुम तो कर रही हो, ये बड़े फील्ड में कर सकती हो यहाँ से, अगर तुम जुड़ती हो तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके संग काम करूं और कुछ सीखूं, और काफी ज्यादा ह्यूज मात्रा में यहाँ पे काम करके और लड़कियों को ग्रूमिंग कर सकूं आपके साथ, कदम से कदम मिला के। ओके, गुड, थैंक्स। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन बताएगा कि बाय सेल्स? हाँ हाँ मैम, सुशांत है, आवाज आ रहा है? यस सुशांत, बोलिए। मैम, एक्चुअली आई एम fresher in this field, but from my personal point of view, sales, hello, हाँ सुन रही हूँ। yes, sales और salesperson is always a topmost position in any business or any firm. Hello, हाँ सुन रही हूँ, बोलिए सुशांत। हाँ मैम, एंड एक्चुअली जो मोस्ट बेसिक रहता है ना, थोड़ा सा जोर से बात करेंगे? हेलो जी। यस, जो बेसिक थिंग्स रहता है एज ए सेल्स पर्सन, दैट यू विल इंटरेक्ट विद मल्टीपल ऑफ कस्टमर्स एवरी डे एंड यू विल हैविंग द एडवेंचर लाइफ एंड टास्क एवरी डे इन लाइफ, that's the thing that makes a person valuable. ओके, और सेल्स का मतलब क्या है आपके लिए? वन वर्ड।
एडवेंचर एडवेंचर, एडवेंचर, वेरी गुड। ओके, कोई और बताएगा? नवीन जी, हेलो। Yes, ma'am. Am I audible? यस। Basically, I'm new to this field. I'm a fresher to this field, but I've बट been आपने ये joining this. फील्ड चुना के, हाँ ठीक है। Yeah, I've joined this field just because all my friends and my parents always also says that I have a good convincing skills. So I just want to test myself that is it true that I have good convincing skills or not? ओके, आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो इसलिए आए हो, ठीक है। ओके, आपका सेल्स के लिए अगर वन वर्ड में आप डिफाइन करो तो क्या है आपके लिए सेल्स? Maybe motivating others into our products. ओके, हर्षित। हर्षित, यश, हेलो। आप बता। हाँ हाँ हर्षित बोलिए। यस मैम, मेरा तो ये मानना है कि सेल्स एक मतलब करियर को ग्रो करने के लिए सबसे स्टार्टिंग एज ए बिगिनर, जैसे कि मैं हूँ अभी, मेरे को महीने का बस एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 6 मंथ का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो सेल्स में आगे बढ़ना और उसके लिए मतलब मेरे को और मतलब ये चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे मैं अपने आप को और ग्रूम कर सकूँ और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकूँ। ओके ओके, एंड और एक अगर मेरे को सेल्स को डिफाइन करना होगा तो मैं उसको डिफाइन करूंगा मनी से, क्योंकि मेकिंग मनी मतलब सेल्स उसी में डिपेंड है कैसे बनाना। ओके गुड। और कोई बताएगा? सब, हाँ कौन? हाँ बोलिए। हेलो। यस प्रियंका। यस मैम, मैं बेसिकली मेरा जैसे वर्क एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर सर्विस का। मुझे सेल्स का तो वैसे कोई नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना जानती हूँ कि सेल्स मतलब एक ऐसा चीज़ है कि जैसे हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ग्रोथ भी कर सकते हैं। ओके। और उसका तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, और फैबिना का भी मैं आपको सच बोलूँ तो फैबिना का भी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बट जैसे मुझे कल पता चला है कि ये मतलब ये एक अच्छा ये प्रोसेस है कि जिसमें इसमें ग्रोथ भी अच्छा होगा और एक ट्रैक मिलेगा, मतलब खासकर वो लेडीजों के लिए कि वो सेल्फ डिपेंड हो सकती है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा हो जाता है तो डेफिनेटली मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। ओके ठीक है। और सेल्स का मीनिंग एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो क्या करोगे? एक्चुअली सेल्स के तो बहुत सारे मीनिंग है, बट मेरे हिसाब से तो मनी और ग्रोथ हो सकता है। गुड, ठीक है। और कोई बताएगा? हेलो मैम। यस सर बोलिए मिस्टर दुबे। यस मैम। मैम मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सेल्स में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया। मैंने 5 इयर्स टोटल एक्सपीरियंस लिया। फर्स्ट ऑफ मैं रिटेल सेल्स में था जिसमें बिग बाजार का फॉर्मेट था। उस फॉर्मेट में मैंने लॉयल्टी सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में काम किया था, जहां पे मुझे जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट था प्रॉफिट क्लब कार्ड मेंबर्स, तो मैं ये कार्ड्स बनाता था, कस्टमर को कन्विंस करता था। और इस कार्ड्स मैं बनाते बनाते मैंने जोन टॉपर का अचीवमेंट किया था। नागपुर रीजन में था मैं। तो ये तब से मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ सेल्स में ही सब कुछ हो सकता है अगर ग्रोथ करना है तो। अगर हमें एक अपनी पहचान बनानी है तो मुझे सेल्स को एक अलग तरीके से करना होगा। तो मैंने उस तरीके से किया। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो नेगेटिविटी लाते हैं कि हाँ तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं उनके अपोजिट रहता था। मैं पॉजिटिवली सारे वर्क करता था और मैं टॉपर रहता था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था फ्यूचर रिटेल में। देन मैंने नोकिया कंपनी में, स्मार्टफोन कंपनी में मैंने काम किया था। तो वहां पे 2 इयर्स मैंने वर्क किया। तो वहां पे भी मैंने ग्रोथ के लिए मैंने नागपुर से मैंने पुणे आया। मैंने सोचा कि अगर नागपुर का बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं पुणे में आके ग्रोथ करता हूँ। तो पुणे में मैंने 7 मंथ वर्क किया एज ए नोकिया में सेल्स कंसल्टेंट का। तो देन मुझे यहाँ पे 7 मंथ में पैन इंडिया टॉपर का मुझे अवार्ड मिला और मैं थाईलैंड ट्रिप का विनर हुआ।
तो मैंने ये जितनी भी स्ट्रगल्स मैंने जो सेल्स में किए, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। और मैंने जितने भी मतलब मैं कभी डरा नहीं, कभी हारा नहीं, और मैं हमेशा हर कॉन्टेस्ट में विनर रहा मैम। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सेल्स का। और फाइनली फिर मुझे एक कंपनी से ऑफर आया rentomojo.com से, तो जिसमें मैं मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें मैं रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट मिली। मुझे 2 एरियाज मिले, जो 2 एरिया में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेल्स हैंडल करता था। एंड देन कंपनीज अभी टोटली लेड ऑफ हो चुकी है, तो कंपनी टोटली बंद हो चुकी है। तो फिर मैं सर्चिंग में था न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैंने वहाँ पे फेबिना ग्रुप का देखा, मैंने इंडीड पे एंड naukri.com पे, तो मैंने अप्लाई किया। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा। कंपनी अच्छी है, और मुझे आकांक्षा मैम ने जो बताया डिटेल्स वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में जुड़ूं और अपने आप को उस पोजीशन पे देखूं जहां मुझे जो मेरा गोल सेट है। जैसे मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये मेरा सपना है। तो ये सारी चीजें मुझे अचीवमेंट करनी है, और मैं इसलिए यहाँ बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ और आना चाहता हूँ जो मुझे पता नहीं है। और सेल्स के लिए मेरा वन वर्ड रहेगा कि सेल्स के बिना कोई भी बिजनेस बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर सेल्स है तो बिजनेस है। ये तो हो गया उसकी थ्योरी बोल सकते हैं, या उसका वो बोल सकते हैं। मैं अगर सेल्स को वन वर्ड में डिफाइन करना हो, तो क्या होगा? वन वर्ड में सेल्स इज एवरीथिंग फॉर ग्रोथ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी भी कि उसके मतलब क्यों मैं बोल रही हूँ ये बात। ठीक है, और कोई नेक्स्ट? Hello, ma'am. नेक्स्ट, Hello, ma'am. हाँ प्रतीक। My name is Pratik Kherkar. Yes, Pratik. I have 3.5 years experience in sales. Okay. Field sales, ma'am. Actually, I choose my career in sales because मुझे नए लोगों को मिलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सेल्स में गया। और मुझे लगता है कि मैम सेल्स इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं सेल्स में, जो बाकी जो करियर्स है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप नहीं सीख पाते, क्योंकि आप डेली रूटीन्स में रहते हैं। बट सेल्स में आपको हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिसे आप फेस करते हो, इसे आप सॉल्व करते हो, और उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो और इन वन वर्ड अगर मैं कहता हूँ कि मेरे लिए सेल्स क्या है, तो इज लर्निंग प्रोसेस। ओके, लर्निंग। यस मैम। ठीक है, और कोई बताएगा? हेलो। हाँ या मैम, आरती। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। एज एन सेल्स वाइज, जैसे कि आपने वन वर्ड में डिफाइन करने के लिए कहा, तो सेल्स इज अ हेल्प ओल्ड और न्यू प्लेटफॉर्म। एंड आरती, आई थिंक आप ट्रेनिंग पहले भी अटेंड कर चुके हैं, राइट? या मैम, पहले भी मैंने अटेंड किया हुआ है, बट मैम अभी घर की प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मैंने लेफ्ट कर दिया था मैं। लेकिन फेबिना ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो काफी अच्छा स्टेज मिलता है हमें, प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को आगे ज्वाइन करने का, मतलब आगे पैसे कमाने का, और ऊपर से मीन्स 2 पर्सन से इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने के लिए। ओके। तो आई लव सेल्स, तो उस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया फिर से फेबिना ग्रुप। मुझे काफी पहले भी अच्छा लगा, मैं जब भी फर्स्ट डे से मैंने ज्वाइनिंग किया था। आई लव द एनवायरनमेंट ऑफ फेबिना ग्रुप। तो जैसे कि सेल्स वाइज आपने कहा, तो सेल्स जैसे कि हेल्प होती है, और एक गुड प्लेटफॉर्म होता है वर्क करने के लिए। दैट्स इट मैम। मैम, आरती ने 1 महीना पहले ज्वाइन किया था हमें, बट कुछ इश्यूज की वजह से उसने बोला था कि मैम मैं रिज्वाइन करूंगी बाद में, और कल उनका खुद से कॉल आया था कि मैम मुझे वापस वर्किंग स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं नाम देख के पहचान गई, इसलिए मैंने पूछा। जी मैम, जी। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, और कोई प्लीज एक्सप्लेन करेंगे फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सकें? जी जी, यस समीर। लाइक मैंने 2 साल काम किया है यूएस टेक सपोर्ट में। ओके। और वो सेल्स प्रोसेस था। एज पर माय थिंकिंग, लाइक सेल्स प्रोसेस में यू गेट टू नो अदर टाइप्स ऑफ पीपल, लाइक थिंकिंग, मतलब वो लोग की थिंकिंग कैसी होती है, और मतलब उन लोग को कैसे बात करना चाहिए। ओके।
मतलब एक आपको आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज के, नए नए कस्टमर्स मिलते हैं, तो उनको कैसा मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी। क्योंकि मैं उससे पहले मैं टायर शोरूम में भी था, मैं वहाँ पे अकाउंटिंग का काम करने का, बट मैं अकाउंटिंग का काम करते करते मैंने सेल भी किया है, टायर सेल। ओके। तो मैं ऐसे मतलब बीच में मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंसानों से मिला, मतलब उनके मतलब वो कहते हैं ना डिसीजन या फिर कुछ उनकी सोच, तो उनको कैसा अपने को मतलब टैकल करना चाहिए, वो सब मैंने सीखा है सेल्स से। एंड वन वर्ड सेल्स लाइक मींस फॉर मी इट्स लाइक मनी एंड टारगेट। मनी एंड टारगेट, ओके, गुड गुड। कोई और बताएगा? देखिए, आप लोग जितना स्लो बोलेंगे या नहीं बताएंगे तो उतना आपके लिए ही तकलीफ होगी, और हम लोगों के लिए बैच को, मुझे आप सबका आईक्यू समझना, उसके साथ साथ में आप लोग क्यों आए हैं ये समझना, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी ट्रेनिंग पीपीटी ट्रेनिंग नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आपके ऊपर कोई भी चीज थोपें। हम ये चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सको। ठीक है, सो हेलो। थोड़ा सा सब लोग फटाफट हेल्प करेंगे तो इजी होगा। कौन का बाकी, किनका हेलो। बाकी रह गया है? यस हेलो मैम, कैन यू हियर माय वॉइस? यस यस मैडम, माई सेल्फ इज उमा शंकर। यस। मैडम, मैं होटल इंडस्ट्री में 14 ईयर से जॉब कर रहा हूँ एज अ कॉन्शियस एग्जीक्यूटिव, एंड आई हैव अ गुड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। एंड मैंने देखा है कि लोगों को, बिकॉज हमारे होटल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एंड वहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी है सेल्स में। एंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ये इसकी वजह से हमारे यहाँ पे काफी सारी जॉब चली गई है, बिकॉज होटल इंडस्ट्री पूरा डेड हो गया है बुरी तरह इस से। समय। यस मैम, पूरी तरह से डेड हो गया है। तो मेरे को फ्रेंड्स की तरफ से मेरे को एक सेल्स मिला रेफरेंस फेबिना के बारे में, ओके। और इसकी वजह से आई हैव जॉइन द फेबिना। और सेल्स में आप जितना ज्यादा ग्रो कर सकते हो वो और किसी चीज में नहीं ग्रो कर सकते हो मैडम। एंड उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली दिखता है। वो जैसे आप काम करोगे आपको इमीडिएटली उसका रिपोर्ट आते दिखता है। जाते हैं कि हाँ यस मैडम। आप जैसे ही आप जितना इम्प्रूव आप ये करोगे, स्किल्स भी डेवलप होता है आपका, मनी डेवलप होता है, और बहुत सारी चीजें वो सेल्स के थ्रू ही सीख सकता है आदमी। और सेल्स में आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, सब कुछ। बेचने वाले को तो बेच देता है, बट जो सेल्स करता है उसके बारे में तो वो डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है मैडम उसके। और सेल्स मेरे हिसाब से उसका अगर वन वर्ड में डेफिनेशन करना चाहिए तो ग्रोथ और मनी। ओके, गुड, ठीक है। और कोई बताएगा? मैम, यस। hi ma'am, nice to hear that you are from Jabalpur. I am also from Jabalpur too. Okay, good. And in one word अगर मैं बोलूँ सेल्स को तो मैं इसे डिफाइन करूँगी एज अ स्किल्स, क्योंकि विदाउट स्किल्स आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। यू कांट लर्न इफ अगर आपके पास स्किल्स नहीं है किसी को बोलने की या अपना प्रोडक्ट आगे करने की, तो मे बी फॉर माई थिंकिंग इट इज अ स्किल ऑफ वन वर्ड। Okay. बाकी तो इसमें अभी मैं फ्रेशर हूँ एज अ सेल्स, बिकॉज अभी तक तो, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर और एज अ डेंटिस्ट आई वर्क एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो इस फील्ड में तो मैं न्यू हूँ, बट आई वांट टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन, क्योंकि मुझे ये फील्ड काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लोगों से एक्सपीरियंस मिलता है, हम लोगों को देते हैं, सो दैट्स गुड। ओके, अभी कोई बाकी रह गया? प्रगति, आपको कुछ बोलना है? हाँ मैम, मुझे यस, बताइए। सेल्स के बारे में कुछ पता नहीं इतना, पर मुझे ये पता है कि सेल्स में गुड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए। ओके ओके, मैं गुड। इस फील्ड में फ्रेशर हूँ मैम, मुझे इतना कुछ पता नहीं इसके बारे में, पर ठीक मैं है। आपसे सीखना चाहूंगी बहुत कुछ। गुड गुड गुड। हेलो। ओके, हाँ जी। हाँ मैम, मनीष है। हाँ मनीष, बोलिए। मैम, मेरे लिए सेल्स ऐसा है, मतलब जितना टाइम में मुझे टारगेट अचीव करना है, आई कैन अचीव दैट टारगेट इन दैट रिक्वायर्ड टाइम। मीन्स अगर इट्स नॉट अ सैलरी बेस्ड, अगर मुझे 20,000 चाहिए नेक्स्ट मंथ तो मैं मेरी सेल उतनी होनी चाहिए, 50,000 चाहिए तो उतनी होनी चाहिए। मीन्स इनकम जितना मुझे चाहिए मैं उतना निकाल सकता हूँ सेल्स से।
फॉर मी सेल्स इज समथिंग विच इज एडवेंचरस, मीन्स यहाँ पे बहुत लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, लोगों की थॉट प्रोसेस हम जान सकते हैं कि कैसे थॉट प्रोसेस है, उनको क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स में क्या डेवलपमेंट चाहिए, दैट और फिर यहाँ पे हम खुद भी डेवलप हो सकते हैं, और पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए फिर मैंने बहुत सेल्स कुछ ज्वाइन किया। स्कोप है। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, वन वर्ड में अगर सेल्स को डिफाइन करना हो देन क्या है मनीष आपके लिए? इट्स वन वर्ड, इट्स मेकिंग मनी इन लेस टाइम। ओके, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा? कौन रह गया है? चलिए, मुझे लगता है हम लोगों के अगले 5 दिन बहुत अच्छे कटने वाले हैं। ठीक है, आप सब लोगों से मुझे ना थोड़ी सी कुछ बातें करनी है। पहली चीज तो ये है कि ये 5 दिन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अब जो बाकी रह गए हैं वो प्लीज मैसेज डाल दीजिएगा, क्योंकि शायद कुछ लोगों का इंटरनेट बोलने लगेगा तो हमारी मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाएगी फिर बाकी सारे लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सेल्स को अगर मैं वन वर्ड में डिफाइन करूं, क्योंकि मेरा लास्ट 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस में 20 साल तो सेल्स में ही है, तो मैंने जो सीखा जिंदगी से वो ये है कि सेल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है, वो है हेल्प। आप सबने जो कहा वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट था, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही था। ये सारे मतलब होते हैं सेल्स के, कोई भी गलत नहीं था। सेल्स के सारे मतलब होते हैं, बट अगर मैं सेल्स को वन वर्ड में डिफाइन करूं तो आपको हम लोग उसको बोल सकते हैं हेल्प। या तो हमारे कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या नया गोल अचीव करा दो। ठीक, अगर आपने उसकी कोई पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व कराई या उसका नया गोल अचीव किया तो आपको किसी चीज को बेचना नहीं पड़ेगा, क्लाइंट खुद खरीदेगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सेल्स को अगर आपने, देखिए सबके काम करने का अलग अलग तरीका है। ठीक, मनीष जैसे आपने कहा कि सेल्स वाला व्यक्ति अपना चेक खुद बनाता है, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर उसका चेक नहीं बनाता, उसका सीनियर उसका चेक नहीं बनाता। सेल्स का बंदा अपना चेक खुद लिखता है, उसको क्या चाहिए वो डिसाइड करता है और उसको वो अचीव कर सकता है, करता है और करते आए हैं। ठीक, जितने भी सेल्स में जो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, वो सारे के सारे लोग इसी फिलॉसफी पे काम करते आए हैं कि मुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं खुद बनाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से डर नहीं लगता, मेरा चेक मेरे हाथ में है, क्या मुझे चाहिए, बट ये आएगा कब? ठीक, तो ये जितनी भी चीजें आप सब लोगों ने बोली ये सब के सब बाय प्रोडक्ट है। जब आपका काम होगा तो पैसा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, उसके साथ में रिलेशन भी बनेंगे, सारे के सारे बाय प्रोडक्ट हैं। और उसके लिए करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो अब और पहले वाले सेल्स में, मतलब मैंने आज से 20 साल 22 साल पहले जब शुरू किया था, उस समय पे लोग ये सिखाते थे कि सेल्स का मतलब है गंजे को कंघी बेचना, उसको सेल्स बोला जाता है। ठीक, अभी जो लोग उस फिलॉसफी के साथ में काम करना शुरू किए थे, आज की डेट में वो पूरी तरह से खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? कि उन्होंने सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उनको प्रोडक्ट चैंप दिया। थोड़े मैं खड़ूस वर्ड यूज करूंगी, थोड़े खराब वर्ड यूज करूंगी, सो प्लीज मैं मतलब आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि सेल्स में ये सारे वर्ड्स इसलिए यूज होते हैं कि आप दोबारा जब भी कोई ऐसी हरकत करने जाओ, आपको वो वर्ड्स आपको नॉक कर दें और आपको वहां पे रोक दें। ठीक, तो वो जमाने गए जहां पर क्लाइंट को आप अपनी बात मनवा सकते थे, आप उसको बेवकूफ बना सकते थे, वो जमाना टोटली चला गया। मेरे साथ में बहुत अच्छा ये रहा, चूंकि मैं बीइंग ए ठाकुर फैमिली, मेरे पास में बहुत सारे चैलेंजेस थे जब मैंने अपना करियर शुरू किया, कि मुझे एक भी गलती नहीं करनी है, बीइंग ए लेडी भी और बीइंग ए ठाकुर फैमिली से होने की वजह से मेरे पास में एक बहुत बड़ा टेंशन था। वो टेंशन ये था कि मुझे अपनी लाइफ में एक भी गलती नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था मेरी एक गलती मतलब मुझे वापस घर में बिठाल देने वाली प्रोसेस होगी। तो मैं उस समय पे भी जब सारी दुनिया लोगों के साथ में ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी कर रही थी, मैं अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी कर रही थी। यही वजह है कि आज 22 साल बाद भी मैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ।
मेरे साथ के लोग जो अपने बहुत मास्टर हुआ करते थे, उससे ज्यादा पैसा कमा रहे होते थे, आज की डेट में वो सब खत्म हो गए। ठीक, खत्म हो गए या सरवाइव कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ समय काट रहे हैं। प्रगति, आपका म्यूट कर लीजिए बेटा। ठीक है, सो ओवरऑल जो है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको किसी भी क्लाइंट के साथ में काम करते समय उसकी या तो पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या नया गोल अचीव करना है। जिस दिन आप ये करना शुरू कर गए, आपको क्लाइंट नए क्लाइंट देगा। ठीक, सेल्स का मतलब बहुत सारे हैं, जहां पे मल्टीप्लिकेशन भी होता है, जहां पे कुछ लोग कहते हैं कि सेल्स का बंदा जो है वो 8वां अजूबा होता है। ये सच है। सेल्स वाले को डिप्रेशन नहीं आता, ये भी सच है। सेल्स वाले का कॉन्फिडेंस हमेशा 7वें आसमान पे होता है, ये भी सच है। बट कब? जब वो काम ऐसे कर रहा है जिससे कि उसने किसी के जीवन में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या उसका गोल अचीव कराया है। जिस दिन आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, आप लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिए, उस दिन आपकी ग्रोथ को रोकने की ताकत ना उस ईश्वर में भी नहीं है जिसने हमें बनाया है। बट हम बन क्या रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेचू बन रहे हैं तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शनल काम करेंगे, बट अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं तो हमें हमारा क्लाइंट ही हमें प्रमोट करेगा। ठीक, आज आरती वापस क्यों आई? क्योंकि आरती ने देखा कि यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा और मुझे ग्रोथ भी मिलेगी। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि फेबिना में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला कल्चर नहीं है। ठीक है, अब वो कभी कभी हमें सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए अपॉइंटमेंट लेटर ये वो सारी चीजें चलती हैं। बट यहाँ पर फेबिना मेरा जितना है उतना आप सब लोगों का है। आने वाले 1 साल बाद जो टीम आएगी उसका भी उतना ही होगा। सो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बाकी सारी चीजें। सो हम लोग इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि आपने काम एथिकल करना है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू आपकी भी है और फेबिना की भी है। चूंकि हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसीलिए हमारा सक्सेस रेशो बहुत हाई है, हमारा कन्वर्जन रेशो बहुत हाई है, क्योंकि हमने कभी भी उस प्रोडक्ट पे हाथ डाला ही नहीं जहां पे हमें कस्टमर को प्रोडक्ट चैंपना पड़े। ठीक, कस्टमर को जबरदस्ती प्रोडक्ट देना पड़े। और दूसरी जो चीज है कि क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें अनएथिकल काम नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज का क्लाइंट बहुत अवेयर है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, और पढ़ा लिखा नहीं भी है ना तो उसके हाथ में जो मोबाइल है ना, इसमें गूगल बाबा जो बैठे हैं ना, वो सब कुछ बता देते हैं। तो कभी भी किसी के भी क्लाइंट को अगर आपने, एक सेकेंड अक्षता, ठीक, तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि कभी भी किसी भी क्लाइंट को अगर आपने कुछ भी गलत बोला या ओवर कमिटमेंट किए, क्लाइंट एक तो आपका से लेगा नहीं प्रोडक्ट, और साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको बदनाम भी कर देगा। तो इस चीज का बस ध्यान रखना है कि चूंकि हमारे पास में ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, तो हमें क्लाइंट की हेल्प करनी है, ना कि उसको कुछ बेचना है। जिस दिन आप हेल्प करने वाला एटीट्यूड ले आएंगे, उस दिन आपकी सक्सेस को रोकने कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे हिसाब से सेल्स का मतलब है हेल्प। क्लियर? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? Yeah, ma'am, definitely. Help is customer and old problems. We are solving them. ओके, बाकी सब लोग एग्री करते हैं? यस मैम। ठीक, देखिए, तो अगर हम लोग इस एटीट्यूड के साथ में काम करेंगे, देखिए आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और मुझसे शायद आप लोगों को भी कुछ सीखने मिल जाए। ठीक, क्योंकि मैंने बहुत हार्डकोर मेहनत की है, बहुत कुछ अपने लेवल पे सीखा है। और सबसे मेन चीज, सेल्स में कहते हैं कि 2 लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जिनको थोड़ा सा मैनिपुलेशन आता हो और जिनको जो बहुत सॉफ्ट हो। और मेरे मामले में मेरे लिए सारे लोग मेरे पीठ पीछे और मेरे सामने भी बोलते हैं कि मैं बहुत खड़ूस हूँ। ठीक है, मैनिपुलेशन मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में बिलीव करती हूँ। उसके बाद में मैंने काफी सारे अचीवमेंट लिए हैं, काफी सारी सक्सेस ली है। सो ये कहीं ना कहीं मैंने ये प्रूव किया है कि क्लियर काम करके भी अचीवर बना जा सकता है। ठीक, सो मेरी
उम्मीद ये होगी कि आप सब लोग भी लोगों को हेल्प करके अच्छा पैसा कमाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत अच्छा पैसा कमाओ, लोगों का गोल अचीव करा के पैसा कमाओ। और ये ज्यादा इजी है चैप बनने से, ठीक है। तो हम लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों की पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को किस तरीके से लिया जाता था, बट इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का मतलब है कि लोगों को हमें हेल्प करना है। हमने कोशिश भी की है कि हम सारे वो चीजें लाएं जिससे आपको बेचू ना बनना पड़े, ठीक, आप खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर पहले ही दिन बता देना चाहती हूँ। कमिटमेंट ये है कि इतना सीखने मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा, ठीक, कि आप सब लोग डिसाइड कर लो कि आफ्टर 6 मंथ आपको क्या करना है, ठीक। दूसरी चीज, 90 डेज कोई भी काम को सीखने के लिए लगते ही हैं, तो आपको कम से कम 3 महीने का पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि अगले 3 महीने में एक तो कोविड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके साथ साथ में शुरुआत के 90 दिन आपको चीजों को समझने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जब हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीजों को समझने के लिए, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा, ये गारंटी है, बट आपको भी अपने लिए कोई प्रेशर खड़ा नहीं करना है, ठीक। और पुराने लोगों को मैं जरूर बोलूंगी कि कल वो मीटिंग में आए और आप सब लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ऑलरेडी फेबिना के साथ में लगभग 45 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है प्लस हम डॉक्टर बिंद्रा के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कम से कम जो चाहिए है टीम 150 से 200 लोगों की टीम चाहिए। कल आपके पास में हरारगी भी आ जाएगी कि आने वाले समय में आपके पास में कहां से कहां पहुंचने का स्कोप है, ठीक। हम लोग पेरोल भी फिक्स करेंगे, बट जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जैसे प्रॉब्लम आपके लिए है वैसे प्रॉब्लम हमारे लिए भी है। रेवेन्यू आएगा नहीं तो खर्च नहीं होगा, ठीक है। सो कुछ समय के बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका होगा, बिजनेस सब कुछ नॉर्मल हो चुके होंगे, उस समय पे मे भी हम लोग फिक्स पेरोल पे आ जाएं। बट अभी आपको आकांक्षा ने बता दिया होगा कि आपने जो भी हम लोग नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है हर इंसान को अपनी कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक। जैसे शादी का अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट कहती है ना, वैसे मैं मानती हूँ कि कमाने का अधिकार भी उसके हाथ में होना चाहिए। उसको क्या चाहिए ये उसने डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसको ये अगर पता है कि मुझे ये चाहिए तो मेहनत उसके बदले में क्या करनी पड़ेगी ये भी उसको पता होगा। तो हमारे यहाँ निगोशिएशन जैसी कोई चीज नहीं है। आपने जो भी अमाउंट मांगा है उसके बदले में आपको आकांक्षा मैडम ने एक टारगेट दिया होगा, उस टारगेट के अगेंस्ट आपको वो चीजें मिलेंगी। 100% टारगेट अचीव करो, 100% लेके जाओ, एक्स्ट्रा करोगे एक्स्ट्रा लेके जाओगे। इंसेंटिव हम लोग बहुत भर भर के देते हैं। ग्रोथ हमारे यहाँ अनलिमिटेड है, लर्निंग कोई सीमा नहीं है, ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग। मेरे पास जो है वो आप लोग सीखेंगे, आपके पास जो है वो मैं सीखूंगी, और चित्रेश सर हैं, कीर्ति सर हैं, सब लोग सीखेंगे, राइट। सो ओवरऑल मुझे लगता है आज की मीटिंग हम ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। मुझे आप लोगों से 3-4 चीजें चाहिए हैं जो ग्रुप में डालनी है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगले 5 दिन आप लोग लर्निंग के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। लर्निंग के लिए मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में हम लोग काम करते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डॉक्टर बिंद्रा के जितने भी सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं आप उनको जितना हो सके उतना देखिए। मंदार जी म्यूट कर लीजिए, आपका पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है। सो आपको डॉक्टर बिंद्रा के जितने भी सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं वो कोशिश करने हैं वो सारे के सारे देखने के लिए, ठीक। उसके अलावा आपको ये अपनी डीप थिंकिंग में जाना है, आपके गोल क्या है वो बताने के लिए। अगर कंफर्टेबल हो तो ग्रुप में डालिए, कंफर्टेबल ना हो तो आप सबके पास में मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को हेल्प मिल जाए आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे कस्टमर्स का या तो पुराना प्रॉब्लम सॉल्व कराना है या नया गोल अचीव करना है। जब तक आप लोग टीम में नहीं आए तब तक आप लोग मेरे लिए कस्टमर हो, ठीक है। तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी या तो मैं पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करूं या नया गोल अचीव करने के लिए काम करूं, ठीक है। तो वो कल्चर ऊपर से ही आएगा, ठीक। सो आप सब लोगों के अगर गोल है तो वो बताइए, नहीं है तो माइलस्टोन बताइए, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग भी काम कर पाएंगे। ग्रुप में डाल सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक। एक दूसरे को पता चलता है, कई बार हमें उस चीज का भी मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो पर्सनल भेज सकते,
ठीक। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, आप सब लोगों को क्या लगता है इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और इस ट्रेनिंग में कौन कौन सी लर्निंग है जो आपको चाहिए कि सेल्स के लिए कंपलसरी चाहिए है, ठीक, और उसके ऊपर हम लोग बात करें। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन सभी का अच्छा है, जितने मैंने सबसे बात की सबका बहुत अच्छा है, बट कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक रूल होते हैं कि एक कम्युनिकेशन में पिच मॉड्यूलेशन भी आता है, नॉलेज भी आता है, और उसके साथ साथ में ये भी आता है, बॉडी लैंग्वेज भी आती है, ठीक। तो इनके परसेंटेज कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हम डिटेल में हर चीज पे जाएंगे, ठीक है। मैंने एमबीए भले नहीं किया है, बट एमबीए वालों के साथ में बहुत काम किया, और मैंने मुझे हिंदुस्तान लेवर ने एक डिग्री कोर्स कराया था, जिसको हमारा कॉम्बिनेशन कोर्स बोल सकते हैं, जो एमबीए का जो निचोड़ होता है, निचोड़ मतलब सार, जो 2 साल की पढ़ाई का जो निचोड़ होता है, जो सार होता है, वो कोर्स मैंने किया हुआ है। ऑलमोस्ट एक जो स्टेप, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को जो चाहिए सारे स्किल्स, वो सारे स्किल्स के ऊपर हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो वो इक्वल टू एमबीए, बल्कि उससे सुपीरियर कोर्स था जो मैंने किया था 2006 में, ठीक। तो आप लोगों को शायद कुछ नई चीजें भी मिले, जो आपको लगे यार मुझे ये नहीं पता था, या कुछ नया लर्निंग मिली, ठीक है। तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप सब लोग, एक आकांक्षा, आकांक्षा मैडम, आकांक्षा, जी 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 मैम, जी आकांक्षा, सुन रही जैसे हूँ, सुन रही हमारी पहली ट्रेनिंग में हमने एक पॉइंट बना के दिए थे, तो शुरुआत के 1-2 पॉइंट, जैसे कम्युनिकेशन मैंने लिखा है, तो वैसा पॉइंट आप बना के दे दो। बाकी सब लोग अपने अपने जो जो उनको चाहिए है, एडिशनल वो लर्निंग चाहते हैं, वो सब पॉइंट उसमें ऐड कर देंगे। तो हम लोग उसी के ऊपर बेस करते हुए ट्रेनिंग करेंगे, ताकि हमारी ट्रेनिंग ट्रैक पे चले, और बहुत अच्छे से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिटेल में बात कर पाए, ठीक है। ओके मैम, ओके, मैं आज ही डाल देती हूँ ग्रुप में मैसेज। तो मुझे लगता है 1 घंटे हो चुके हैं, सो आज ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भेजूं, उन वीडियोस को आप लोग देखिएगा। और ये 5 दिन किसी को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वो है लर्निंग। जो पुरानी है उसको वापस से रिकॉल करो, जो नई लेने की इच्छा है तो नई लेना शुरू करो। मैं कुछ डॉक्टर बिंद्रा के वीडियोस भेजती हूँ आप लोगों को रेफरेंस के लिए, ताकि आप उनको देख पाओ, ठीक। सो हम अपने आप को रिफ्रेश करेंगे नॉलेज से, चलेगा, है ना। इस पूरी ट्रेनिंग को बहुत एक्साइटेड बनाएंगे। और मैम मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी आज की जो लर्निंग है वो भी ग्रुप में डालें, ताकि हर किसी को पता चले कि क्या क्या हुआ है। डेली की, आज की तो ठीक है, हम लोगों ने जैसे मैंने हेल्प बोला, एक ही दो लर्निंग थी, बट एटलीस्ट अगर आप लोग रोज एक प्रैक्टिस बना, आपने जो भी कुछ देखा है उसको आप जो भी सीखा है उसको ग्रुप में डालें, तो कभी कभी क्या होता है, एक की लर्निंग से दूसरे को भी सीखने मिल जाता है, ठीक है। सो एक टीम की तरह हम लोग सब काम करेंगे, ठीक। मैं जो सीखूंगी आप लोगों से वो मैं जरूर ग्रुप में डालूंगी, और जो भी चीजें आप लोग सीखेंगे वो आप लोग डालिएगा, ठीक है। सो कल से ट्रेनिंग करीबन 1.5 से 2 घंटे की होगी, तो नेट पैक वगैरह थोड़ा अपडेट रखिएगा, ठीक। आज चूंकि फर्स्ट डे था, मैं नहीं चाहती कि ओवरडोज हो, सो कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस में डालने वाली हूँ ग्रुप में, आप लोग टाइम निकाल के देखिएगा जरूर, ठीक है। आकांक्षा, आज की मीटिंग यहीं क्लोज करें। आकांक्षा मैडम, आकांक्षा, जी मैम, जी सुन रही हूँ। आप कुछ बोलना चाहते हैं टीम से? नहीं मैम, वर्क हार्ड, यू विल गेट अ ग्रेट सक्सेस। एंड ये बोलना चाहती हूँ कि हर रोज मीटिंग ज्वाइन करिए, कॉज द लेडी हु इज गिविंग यू द ट्रेनिंग, शी इज इनटू द सेल्स फ्रॉम लास्ट 22 years, तो आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा उनसे। एंड बट ऑब्वियसली जैसे मैम ने कहा कि आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। So yeah, I'm just having a good experience with you all and looking for a great future with all of us. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks, Akanksha. All the best, guys. Yeah. Thank आज you. आप so मैम आज की मीटिंग यही खत्म करनी है। ओके डियर। ओके।